Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Chandana Kabir and you're watching Female Freelance Club D6. Okay, so yesterday we have read about SEO writing, that how you will attempt SEO, that what is SEO writing and how one can attempt SEO writing, and how one can write their article according to the SEO rules and regulations. The another topic was the keyword research, that what is primary keyword and what is secondary keyword, and how we can find out the primary and secondary keyword, and how we should arrange that keywords in an article. So today is basically we are going to start about copywriting, as copywriting is also considered as one of the important type of writing in which one can write about a digital marketing. Mean that in copywriting you will be connected with a digital market, and with through digital marketing you are going to promote their products or to promote their website. So you will write an article, and that article is known as a copywriting. Okay, this type of write is done in digital marketing only. Digital marketing means, as you know that now you are aware of the digital marketing, that today era is the evolution of the digital marketing. Every day, every coming day, the new digital marketing are introduced to the world, to the people, and every day the millions of people are visiting to that markets and to purchase their product. The very common which is very common to us is Amazon and Taras and Alibaba stores. So these three are very common to us, and very simply, very easily we can purchase our favorite products from these markets, digital markets, and very easily we get that without going to the market or without going to any bank, etc., without any bank deposit. So they come to our door and we give them cash on the delivery and take the product. So this is very a simple way and a very easy way, and now no one like everyone want to purchase their product. Everyone want to get all the things that they need easily, that it should be easily available to them at their home. So copywriting is something that is done to promote that digital marketing. That is something like it is done only at the time when you that it persuade you to buy something, persuade you about the product, that this what is this product and what is the description of that product and why you should purchase that product. Copywriting is intended to move you to action. Copywriting is something that it forces you to action, to take action or move you to action. Mean that first when you read the copywriting, when you read the content present on present about the product. So after reading that product, after reading that description, after reading that content, you are like mean that the writer use such a flowery language that force you to move an action, to go to that market, to visit that market and purchase that product. The content that make you feel something and in last call you to action. वर्ब प्रो कंटेंट जो कि आपको क्या करता है, आपको फील करता है, कुछ आपको फील कराता है, और लास्ट आप क्या करते हो, आप उस चीज़ को उसको एक्शन में लाते हो. यू टू एक्शन, कॉल यू टू एक्शन. आप जब आप वो चीज़ देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि हाँ अब मैं इस चीज़ को परचेज़ करूँ. आपका जो है वो आपकी एक चाह पैदा हो जाती है उस चीज़ के लिए. तो आप क्या करते हैं, आप उसको परचेज़ करते हैं. That content that persuade the visitor to purchase the particular product. Copywriting is the reason why people buy something. कंटेंट राइट हमारे पास जो कंटेंट इसका होता है, कॉपी राइटिंग का जो कंटेंट होता है, वो ही उस प्रोडक्ट का क्या होता है, रीज़न होता है. उसी ही की वजह से लोग उसको परचेज़ करते हैं, क्योंकि उसने वो लैंग्वेज इतना अच्छा और इतना फ्लावरी लैंग्वेज उसने यूज़ किया हुआ होता है कि लोग जो है वो अनइंटेंशनली चाहते हैं कि वो उस चीज़ को विज़िट करें, उस शॉप को विज़िट करें, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें. कभी कभार आपने देखा होगा कि मोस्टली अगर गर्ल्स को टारगेट किया जाता है तो ज़्यादातर उनकी हेल्थ इश्यूज़ को के हवाले से जो उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते, ज़्यादा उनको कहते हैं कि ये एक्ने के लिए है, ये ऑयल फ्री है, फिर आपके
जो डार्क स्पॉट्स है, वाइट स्पॉट्स है, उनको क्लोज करता है। और बहुत कुछ ऐसा वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वो जो प्रमोट करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा उसमें लिख लेते हैं ताकि जो यूज़र्स है या जो फीमेल यूज़र्स है वो उधर विजिट करे, वो उस चीज़ को पढ़े, उनको अंडरस्टैंड करे कि अच्छा उनको ये प्रॉब्लम, वो हर वो प्रॉब्लम जो एक गर्ल को उनको वो फेस करते हैं, जो कॉमन इश्यूज़ है, तो वो उन चीज़ को हाईलाइट करते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देकर लोगों को क्या करते, ट्रैप करते ताकि वो उधर आके वो प्रोडक्ट क्या करे, सेल करे। और ये सब कुछ कॉपी राइटर, हमारे पास एक राइटर होता है जो उसको करते हैं। एक डिजिटल मार्केट में जो एक ऑनर है जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है तो वो लाजमी तौर पर क्या करते, एक कॉपी राइटर को हायर करता है सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि वो उसके लिए लिखे, उसकी प्रोडक्ट्स के लिए कंटेंट लिखे ताकि उसका जो प्रोडक्ट क्या हो वो सेल आउट हो जाए, वो इजीली हमारे पास क्या वो बिक जाए, आसानी से बिक जाए। एक लोग उसके कंटेंट को पढ़े बजाय इसकी कि वो व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करे या फिर फेसबुक पे पोस्ट दे या इंस्टा पे पोस्ट अपलोड करे ताकि उनके प्रोडक्ट सेल आउट हो, तो बजाय इसके वो क्या करते हैं, वो सिंपली उसके लिए कंटेंट लिखते हैं, उसके लिए एड बनाते हैं और उस एड को क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। फिर उसी एड के ज़रिए उनके लिए बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो उधर आसानी से क्या करते हैं, विज़िट करते हैं। अब हमारे पास है कि एक एग्ज़ाम्पल है, दो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह हमारे पास जो है आप कर सकते हो। हमारे पास एड 1 है और एक एड 2 है। अब दोनों पे हेडलाइंस, एक कंटेंट राइटर ने उसने क्या की, कॉपी राइटर ने उस पर एक हेडलाइंस गिवन है एड्स के हवाले से। अब हमने क्या किया, मैंने एड 1 का हेडलाइन चेक किया तो ये वाला मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ इसको। अच्छा, तो क्या किया मैंने, जब एड 1 का हेडलाइन पढ़ा और मैंने एड 2 का हेडलाइन पढ़ा तो दोनों क्या थे मेरे लिए, दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। तो दोनों ने मुझे क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। अब मैंने दोनों को विज़िट करना था। अब जैसे ही मैंने इसका कंटेंट, अब मैंने इसका हेडिंग पढ़ा, उसके दौरान मैं इसकी क्या गई, जैसे मैंने इस हेडलाइंस पढ़े तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट इसकी लैंडिंग पेज पे आ गई। जैसे ही मैं इसकी लैंडिंग पेज पे आ गई तो इसका जो अंदर जो कंटेंट लिखा था या जो इस कंपनी का जो वेबसाइट के अंदर जो इसका जो कंटेंट लिखा था वो क्या था, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब कि वो कंटेंट जो था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। अब जब मैंने इसको क्लिक किया और मैं इसकी लैंडिंग पेज पे आ गई, लेकिन इसका अंदर जो कंटेंट लिखा था वो क्या था, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था। तो क्या हुआ, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे आई और मैंने ये वाला प्रोडक्ट क्या कर दिया, इसको मैंने सेल कर दिया। तो सेम हमारे पास ऐसा ही होता है। आप क्या करते हो, चूँकि दोनों का हेडलाइंस दोनों के क्या थे, अट्रैक्टिव थे, इसलिए मैंने दोनों को क्या किया, क्लिक किया। लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर जो कंटेंट मौजूद था या जो इसके अंदर को कंटेंट मौजूद था तो कॉपीराइटर ने इस कंटेंट को बहुत ज़बरदस्त, एड 1 के जो कंटेंट था वो बहुत ही ज़बरदस्त लिखा था। उसने मुझे परसुएट किया, उसने क्या किया, मुझे फोर्स किया कि मैं इसकी जो प्रोडक्ट है, इसकी लैंडिंग पेज पे आओ, मैं इसकी जो प्रोडक्ट है उसको क्या करूँ, उसको परचेज़ करूँ। लेकिन इस बाय कर दूँ। अब यहाँ पे जिसका जो कंटेंट था वो इतना परसुएटिंग नहीं था मेरे लिए, तो इस वजह से मैं इसके लैंडिंग पेज पे तो आ गई, लेकिन मैंने इसके प्रोडक्ट को क्या किया, मैंने उसको खरीदा नहीं, नो बाय। मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको परचेज़ नहीं किया, मैंने उसको नहीं ख़रीदा। क्यों? क्योंकि इसके जो कंटेंट थे उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि इसका जो कंटेंट था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो ये इस तरह का जो आपका पास सीन होता है वो ऐसे होते हैं, हम इसी तरह वो आपको परसुएट करते हैं, इसी तरीके से वो आपको क्या करते हैं, आपको अपनी वेबसाइट के अंदर की तरफ बुलाते हैं। फिर हमारे पास जो इसके की एलिमेंट है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है परसुएड। हमें क्या करते हैं, वो हमें फोर्स करता है कि हम उस चीज़ को क्या करें, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ें। जब हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हम खुद उस चीज़ के बारे में क्या हो जाते हैं, हम परसुएड हो जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसा है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके एडवांटेजेस ये है, ये हमें ये हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो वो राइटिंग होता है वो क्या हो जाता है, वो हम पे असरअंदाज हो जाता है। अब जब वो चीज़ हम पे इन्फ्लुएंस हो जाता है, असरअंदाज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको चेकआउट करते हैं।
तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको चेक आउट करते हैं। और जब हम उसको चेक आउट करते हैं उस वेबसाइट को, तो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वही प्रोडक्ट जिसने हमें परसुएट किया, हमें इन्फ्लुएंस किया था, तो हम जाके उस चीज़ को क्या करते हैं, उसको परचेज़ करते हैं। तो एक कॉपी राइटर जब भी अपना आर्टिकल लिखेगा तो ये 3 एलिमेंट्स उसने क्या करना है, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इसने उसको इन 3 एलिमेंट्स को अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड करना है। उसने अपना आर्टिकल क्या करना है, ताकि उसका आर्टिकल परसुएटिंग हो, वो परसुएट करे आपके क्लाइंट को, फिर उसको इन्फ्लुएंस हो, मतलब कि परसुएट किया तो उसको बताए कि हाँ ये इजीली अवेलेबल है हमारे साथ मार्केट में, ये इजीली इतने इतने प्राइस पे हमारे पास ये इजीली अवेलेबल है, आप उसको इजीली परचेज़ कर सकते हो। फिर आपने उसको नीचे सारा डिटेल प्रोवाइड किया उस प्रोडक्ट का, और फिर आपने उसको बता दिया कि हाँ अब जाके आप ख़रीद लो, तो वो इजीली उसको क्लिक करेगा एंड दे विल विजिट टू द अदर टू दैट शॉप, और वो उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। और जब वो परचेज़ करेंगे तो आपको भी पेमेंट दी जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगी, जब एक कंटेंट राइटिंग होती है तो वो क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास आजकल एक बहुत ज़्यादा इन है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है ओरिफ्लेम, एक कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती है, और एक हमारे पास फॉरएवर है। लेकिन चूंकि दोनों कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करती है, लेकिन चूंकि एज़ कम्पेयर टू दे बोथ हमारे पास जो ओरिफ्लेम है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, और बहुत सारे जो हमारे पास जो फीमेल फ्रीलांसर्स है वो इस चीज़ के साथ मुंसलिक है। और बहुत सारे जो फीमेल्स मैंने पर्सनली देखा है कि वो क्या करते हैं, वो जब उनको प्रोडक्ट्स दी जाती है, उनको वो जो उन्होंने कंटेंट लिखा होता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, और वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को लेकर अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड करते हैं, कभी अपने फेसबुक पेजेस पे अपलोड करते हैं, इंस्टा पे क्या करते हैं, अपलोड करते, ताकि उनके पास क्या आ जाए, कस्टमर आ जाए। और मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उनके कंटेंट पेजेस को पढ़कर उनकी तरफ क्या करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो उनकी तरफ आ भी जाते हैं। तो ये क्या है कि उनके प्रोडक्ट बहुत आसानी से सेल हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई प्रोडक्ट दी जाती है, अगर आप कि उसको सेल आउट करें, तो आप उसके लिए कंटेंट राइटिंग करें, आप उसको क्या करें, उसके सारे इंपॉर्टेंस बता दें और फिर उसको अपलोड कर दें, तो आपके पास जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आसानी से सेल होगा। तो एक तो आपको कंटेंट राइटिंग की पेमेंट हो जाएगी, एज वेल एज आपको जो प्रोडक्ट का कमीशन है वो भी आपको मिल जाता है। फिर हमारे पास है कि आप कॉपी राइटिंग कहाँ पे की जाती है और किस किस जगह पे की जाती है। तो इन द कैप्शन ऑफ द फेसबुक एड्स, इन द हेडलाइंस ऑफ द गूगल एड्स, ऑन योर लैंडिंग पेज। सबसे पहले हमारे पास जो गूगल पेज है, जो हमारे पास यहाँ पे जो गूगल एड्स होते हैं, जहाँ पे मोस्टली हम देखते हैं गूगल पे एड्स आते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारे पास कैप्शंस गिवन होती है, कैप्शंस मतलब जो लिखा होता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल, बाय वन गेट वन फ्री, कुछ इसी तरह के जो टाइटल्स हमारे पास सामने आते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसकी कैप्शंस पे ये लिखा होता है हमारे पास, वहाँ पे कॉपीराइटिंग मौजूद होती है। फेसबुक के उन पेजेस पे आप जाके क्या करते हैं, अपने लिए एक चीज़ को जो प्रमोट करते हैं, अक्सर हम कहते हैं ना कि मैंने फेसबुक पे इस चीज़ को मंगवाया है, तो वहाँ पे क्योंकि उन्होंने कंटेंट इतना अच्छा लिखा हुआ होता है कि वो जो यूज़र होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो उस चीज़ को देखकर क्या करते हैं, अपने लिए ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। वो उस चीज़ से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो फेसबुक पर ही अपने लिए ऑर्डर करते हैं, चूँकि उस डिजिटल मार्केटिंग के ऑनर सबको ये पता है कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे बिलियंस ऑफ पीपल यूज़ करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट सिर्फ एक कम्युनिटी, नॉट सिर्फ जस्ट एक कंट्री, बल्कि सारी दुनिया दे आर यूजिंग अ फेसबुक। तो उन्होंने फेसबुक को एक डिजिटल मार्केट बनाई। इवन हमारे पास फेसबुक में एक अलग ऑप्शंस भी आया है, एक अलग की भी है जिसको मार्केटिंग बोलते हैं, वहाँ पर भी आप जब चेकआउट करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। फिर हमारे पास है कि इन द हेडलाइंस ऑफ गूगल एड्स, आपने कल भी मैंने आपको गूगल एड का एक गूगल एडसन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि गूगल एडसन हमारे पास क्या है। जब भी कभी आप किसी आर्टिकल को ओपन करते हैं तो आपको उधर एक एड्स दिखाई देता है, और वो एड बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास गूगल एडसन की तरफ से वो एड लगाया जाता है। अब अगर आप एक राइटर है और आपको क्या दिया गया है, अगर आपको राइटर है, आपने कंटेंट लिखा है और आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोडक्ट दी गई है कि हाँ ये प्रोडक्ट अपने लिए सेल आउट कर दे, और आपने उसके लिए कंटेंट लिख दिया और आप उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग लाइक, वो एक अलग चीज़ है, उसका आपको
कमीशन मिलेगी। लेकिन सम टाइम जो डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको हायर करते हैं कि आप उनके लिए कंटेंट राइटिंग करें, ना कि उनकी प्रोडक्ट को सेल करें। तो उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी राइटिंग करते हैं, आप उनके प्रोडक्ट की रिव्यूज़ जानते हैं, आप उनको उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं। तो क्या होता है, वही आर्टिकल उससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट वो आर्टिकल अपने लिए डिफरेंट साइट पे पब्लिश कर लेते हैं, ताकि उनके जो प्रोडक्ट है उसको क्या हो, वो प्रमोट हो और उनको क्या हो, उनको फ़ायदा मिले आपके कंटेंट से। फिर हमारे पास है कि ऑन यूर लैंडिंग पेज, एक जो डिजिटल मार्केट का एक शॉप होता है, या फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट जहाँ पे अवेलेबल होता है उसका जो लैंडिंग पेज है, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, एक प्रॉपर शॉप है, उसके बारे में जो आप लिखते हैं उसको जो प्रमोट करते हैं। नॉर्मली हम जब अपना वेबसाइट लिखते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी हम कोशिश करते हैं कि उसको फुली एक फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करें, ताकि अगर विजिटर हमारे वेबसाइट पे आए तो वो क्या हो, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए। तो आपने भी क्या करना है, इसी तरह का अपना लैंडिंग पेज जो है वो उसको कॉपी राइटिंग आप वहाँ कर सकते हैं, ताकि उससे जो यूज़र्स हो वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो, वो ज़्यादा आपकी तरफ क्या करे, वो अट्रैक्टेड हो, वो ज़्यादा आपकी तरफ आ जाए। फिर यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्चुअली यहाँ पे मैंने कॉपी राइटिंग लिखना था, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वापस लिखी है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे ठीक कर दूँ। ओके। तो हमारे पास क्या, जब डिजिटल मार्केटिंग प्लस कॉपी राइटिंग, हमारे पास ही एक प्रॉपर क्या होता है, ये हमारे पास एक प्रॉपर अर्निंग इससे की जाती है। मीन आप इससे क्या होता है, आप इससे प्रॉपर अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास ये एक प्रॉपर तरीका है जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। जब आपके पास एक डिजिटल मार्केटिंग का लिंक है और आप एक कॉपी राइटर भी है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उससे बहुत अच्छा खासा जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एफिलिएट आर्टिकल्स। कॉपी राइटिंग और एफिलिएट आर्टिकल आर समथिंग लाइक सेम, ये बहुत चीज़ें हमारे पास सेम है, लेकिन एफिलिएट हमारे पास डिफरेंट। कॉपी राइटिंग ये है कि आप वो किसी के लिए भी कर सकते हैं, किसी और प्रोडक्ट आप जो है वो किसी और राइटर के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी मटेरियल के लिए कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए करते हैं। लेकिन चूँकि एफिलिएट मार्केट क्या होता है, वो आपको एक एफिलिएट लिंक देता है। एफिलिएट मीन कि आप इस चीज़ के साथ मुंसलिक है, आप इस चीज़ के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो। तो इस वजह से वो आपको जो एक मार्केट होता है वो आपको ख़ुद अपने एक एफिलिएट लिंक देता है, और उस एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने के लिए आपको पे किया जाता है। हमारे पास क्या होता है, वो रीज़न जो हम किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए लेते हैं, हमने एक कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि यस हम आपके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, लेकिन आपने हमें कमीशन देना है। तो वो आप जो उनके लिए प्रोडक्ट्स सेल करते हैं उसके लिए आप जो कॉपी राइटिंग करते हैं उसको एफिलिएट क्या आर्टिकल्स कहा जाता है। सच राइटर्स आर एफिलिएटेड विद अमेजोन, अमेजोन भी है, बाकी है भी है, एंड प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स बाय राइटिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू इट। आप जब उनके लिए उनके अकॉर्डिंग कंटेंट लिखते हैं, उनकी डिमांड्स के मुताबिक लिखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो राइटर्स वो क्या करते हैं, वो एफिलिएट आर्टिकल्स लिखते हैं। सम 3% कमीशन यू रिसीव। हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली जो अमेजोन पे होता है कि आप जब किसी चीज़ के उनके जब प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो वो आपको 3% कमीशन देता है। मीन 100% में आपको 3%। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट 300 में बिक गया है तो वह आपको 9 रुपये जो है वो आपको देता है। लेकिन हमारे पास जो वो ये बात मैं अगर यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये ज़्यादातर बिगनर्स के लिए है, जो न्यू भी है उनके लिए है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका हो जाए तो सम टाइम दे विल गिव यू 30% कमीशन एज वेल, 40 भी आपको दे सकता है। बहुत सारे ऐसे राइटर्स, कॉपी राइटर्स एफिलिएट आर्टिकल्स लिखते हैं जो कि उनको 40% पे भी दिया जाता है। आपने क्या करना है, आपने ऐसा प्रोडक्ट लिखना है ताकि उनसे क्या हो, ताकि उनको आपको ज़्यादा कमीशन मिले। जितना ज़्यादा आपको वो लिंक क्लिक करेंगे, उधर विजिट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो आपको क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा, और उतना ही ज़्यादा आपके पास अर्निंग आएगी। फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ एफिलिएट आर्टिकल्स। अब आपने एफिलिएट आर्टिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। वो एक नॉर्मल आर्टिकल की तरह नहीं लिखा जाता, इसका आर्टिकल थोड़ा डिफरेंट भी है और इजी भी है एज़ कम्पेयर टू द अदर। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग है, आप टाइटल दोगे,
किस चीज़ को बारे में आप प्रमोट करो, किस चीज़ के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप अपना टाइटल दो। फिर इसके बाद आपने इंट्रो देना है। इंट्रो विल बी ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट दैट प्रोडक्ट, चाहे उसके एडवांटेजेस है, उसके डिसएडवांटेजेस है, जो कुछ डिसएडवांटेजेस को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वो आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कोई उसकी बुराई देखे, आप सारे सिर्फ अच्छाई बयान करेंगे। तो आपने उसके इंट्रो में उसके बारे में सब कुछ बताना है कि कैसे बना, किस तरह बना और इसके फ़ायदे क्या है, और इससे आपसे इस प्रोडक्ट से आपको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। फिर आपने जाना है प्रोडक्ट रिव्यूज़ पे। आपने वो वेबसाइट जिस प्रोडक्ट को सेल करना है और आपको एक एफिलिएट लिंक दिया गया है जिस वेबसाइट का, तो आप उधर जाके उस शॉप पे उसके रिव्यूज़ चेक करें। इस जो आपने मिनिमम 10 to 20 रिव्यूज़ लेने हैं, और हर रिव्यूज़ का क्या होता है कि आपने 150 वर्ड्स के एक एक रिव्यू को लिखना है। तो आपको क्या होता है कि अब आपने रिव्यूज़ कैसे लिखने हैं, वहाँ पे जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज़ है आपने उसको कलेक्ट कर दिया। अब जिस रिव्यूज़ में जिस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, आपने वही चीज़ अपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो बाइंग गाइड आता है। समटाइम हम क्या करते हैं, हम बाइंग गाइड को प्रोडक्ट से रिव्यू से पहले लिखते हैं, या फिर हम इसको प्रोडक्ट रिव्यू के बाद लिखते हैं, लेकिन इसको जहाँ पे भी लिखो, लेकिन इसको लिखना ज़रूरी है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास बाइंग गाइड में आप उसको बताते हैं कि आप ये क्यों लें, इसके फ़ायदे क्या है, और इसके आपने अगर आप चाहते हैं कि आप रियल रहे तो आप रियल रहे, और थोड़ा जो है वो यूज़र को पता भी चले, तो आपने उसके कॉन्स को भी, प्रोज एंड कॉन्स सब उसमें मेंशन कर दिया। साथ में आपने इसका जो प्रोडक्ट रेट है वो भी आपने क्या कर दिया, बता दिया। अब क्या करना है, आपने टाइटल लिख किया, आपने जो इंट्रो है एक पैरा आपने 100 वर्ड्स का लिखा, दूसरा पैरा आप 2 पैराग्राफ इंट्रो पे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बल्कि 1-2 पैराग्राफ आप इंट्रो पे ले सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ में अगर लिखना है तो अगर 150 है तो 150, अगर आपने 20 लिए है तो 2000 आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2000 तक वर्ड्स आ जाएंगे। अगर 150 आपने बाइंग गाइड्स 50 वर्ड्स तक लेना है, तो आपने कोशिश करना है कि कम से कम आपका आर्टिकल कितने वर्ड्स का हो, 2000 वर्ड्स का हो या इससे ज़्यादा हो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। आपका जो एफिलिएट आर्टिकल्स है इट मस्ट बी अबव 2000 वर्ड्स, बट नॉट बी मिनिमम, मतलब मिनिमम आपका 2K है, 2000 है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन आप 2000 से इसको कम नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आपके पास आपको एक प्रॉपर रिव्यूज़ भी बताऊंगी कि आपने कैसे रिव्यूज़ इकट्ठे करने, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको लास्ट में दूंगी, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करें। अब हमारे पास है कि आपने प्रोडक्ट की उसका रिसर्च कैसे करना है। सबसे पहले आपने गूगल मेथड को अप्लाई करना है। गूगल मेथड में आपको क्या होता है, मैं आपको सिंपली बता दूं कि गूगल मेथड में आपने सिंपल उस प्रोडक्ट के बारे में जाकर क्या करना है, आपने उसके पहले जो टॉप 10 जो रिसर्चेस है, टॉप 10 अगर आप एक प्रोडक्ट के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करने, आपने सैमसंग फ़ोन के बारे में आप चेक करें कि मैं ये क्या करूँ, मैं सैमसंग फ़ोन जो है उसके सैमसंग गैलेक्सी को परचेज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसी के बारे में आर्टिकल देखना चाहता हूँ। तो टॉप 10 सैमसंग गैलेक्सी आप देख रहे हैं और उनके रेट्स के बारे में आप जान रहे। तो आपने जैसे एक आर्टिकल देखा, फिर आपने जो है दूसरा देखा, फिर आपने तीसरा देखा, आपने मिनिमम जो है 6 to 7 आपने आर्टिकल्स देखने हैं। आप जब 6 to 7 आर्टिकल्स देख लेते हो, तो इन 6 to 7 आर्टिकल्स में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सैमसंग गैलेक्सी जो है वो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस हुआ है। मीन के ऐसा आपने वो वाला सैमसंग गैलेक्सी को चूज़ करना है जो कि इन सातों में उसका डिस्कशन हो गई, उसके बारे में हो। मिनिमम अगर 5 में भी उसका जिक्र आया है 5 आर्टिकल्स में, तो आपने वो वाला क्या करना है, वो प्रोडक्ट उठाना है, उसको क्या करना है, उस फ़ोन को आपने चूज़ करना है। फिर इसी तरह दूसरा चेक करें, मिनिमम आपने इसी तरह के 5-6 फ़ोन के बारे में उठाना है, और फिर उसको क्या करना है, उसकी फिर आपने शफलिंग करनी है, उसके बारे में आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, उसके बारे में आपने उसके फ़ायदे सब कुछ लिखना है, और क्या करना है, आपने उसकी शफलिंग करनी है, और शफलिंग से ही आपने उसको एक
प्रॉपर आर्टिकल में जनरेट करना है। लेकिन अगर आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो हमारे पास फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास प्लेजरिज्म आएगा, और अगर प्लेजरिज्म आ गया तो आपका जो आर्टिकल है वो ब्लॉक हो जाएगा। गूगल को पता चल जाएगा कि हाँ ये आर्टिकल तो इस आर्टिकल की तरह सेम आया है, दोनों के सेम प्रोडक्ट्स यूज़ किए, सेम पैटर्न है, सेम सीक्वेंस है, तो वो क्या करेगा, वो आपके आर्टिकल को ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए आपने डायरेक्ट प्लेजरिज्म से बचना है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसमें शफलिंग करनी है, उसके वर्ड्स को चेंज करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ताकि वो आपके पास क्या आ जाए, वो आपके पास एक नया प्रोडक्ट आ जाए। मैं यहाँ पे आपको गूगल पे खुद दिखाती हूँ कि आपने कैसे करना है, और उसके बाद फिर हम दराज पे जाएंगे कि आपने रिव्यूज़ कैसे कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने सैमसंग गैलेक्सी लो प्राइसेस मैंने दे दिए हैं। अब इन लो प्राइसेस से क्या होगा, मेरे पास मुझे जो है चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि कहाँ कौन कौन से ऐसे फ़ोन हैं जो हमारे पास आजकल लो प्राइस पे चल रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे से जो है सैमसंग मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान इसको क्लिक करना है, और यहाँ से मैंने कुछ जो है वो फ़ोन्स को चूज़ करना है। फिर उन्हीं फ़ोन्स को मैंने क्या करना है, देखो यहाँ पे सारे मुझे फ़ोन्स मिल गए। आपने देखो इन्हें सारे फ़ोन में से किसी एक फ़ोन को क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट फ़ोन्स मेरे पास आ गए यहाँ पे। अब ये वाला आर्टिकल तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर, यहाँ से मैंने एक दो फ़ोन्स को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं दूसरे आर्टिकल पे जा रही हूँ, और वहाँ पे भी मैं उसको चूज़ करूँगी। तो यहाँ पे जो मुझे देखिए यहाँ पर भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपने इन्हीं में से फिर वो आर्टिकल यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे सेम आएगा इन दोनों साइड पे, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उन्हीं आर्टिकल को चूज़ करना है, और आपने उसको उसके बारे में एक प्रॉपर आर्टिकल को जनरेट करना है। ठीक है, तो हम अब दराज आ गए हैं, क्योंकि मेरे पास अमेज़ॉन नहीं है तो और दराज है, तो मैं आपको दराज के ज़रिए दिखाऊंगी कि आप दराज मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने एग्ज़ाम्पल सैमसंग गैलेक्सी का दिया है, तो मैंने यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन दे दिया। आप चेक कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास बहुत सारे सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन्स आ गए। अब आपने रिव्यूज़ कैसे चेक करना है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 52 रिव्यूज़ है, यहाँ पे 25 रिव्यूज़ है। इसी तरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 41 है। अब थोड़ा सा ऊपर जो इसको स्क्रॉल कर दे तो हमारे पास यहाँ पे 63 आ रहे हैं, यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे 235 है। तो मीन कि यहाँ पे आप नीचे चेक करें तो जितना आप नीचे जाएंगे आपके पास रिव्यूज़ आएंगे। तो इस वजह से मैंने उसको चूज़ करना है जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हो। तो मैंने ये वाला जो 235 रिव्यूज़ वाला था मैंने इसको चूज़ किया। देखिए यहाँ पे आपके पास सारा डेटा मौजूद है, इस फ़ोन के हवाले से सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही से इसके बारे में सारी डिटेल आपने फ़ोन की कलेक्ट करनी है। इसको कलेक्ट करने के बाद आप रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप ये वाला व्यूज़ ऑल क्लिक कर दें, तो आपके पास एक रिव्यूज़ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। अब इन रिव्यूज़ के बारे में आपको चूज़ कैसे करना है, कैसे आपने उसको वो गाइडलाइन में लिखना है, बाय गाइडलाइन में आपने रिव्यूज़ के बारे में कैसे लिखना है। तो इंट्रो को तो आपको मैंने बता दिया कि इंट्रो पोर्शन आपने वही इस जो सारा इन्फॉर्मेशन है उसको इंट्रो में कवर अप करना है, एज़ वेल एज़ इसको बाय गाइडलाइन में भी उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप इस कंपनी आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं तो आप इनके डिलीवरी टाइम के बारे में भी बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे भी ये बात कॉमन है। फिर आप इसके पैकिंग के बारे में बता सकते हो कि हाँ ये पैकिंग भी है, ये ओरिजिनल फ़ोन को करता है। देखिए गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे सारे आप देख सकते हो, चार्जिंग रिकमेंड सेलर, ये सारा देखिए आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने वही सारी बात की है कि आपने इसको कैसे देखना है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ सेम टू सेम आप देख सकते हो सारे रिव्यूज़ आपके पास गिवन है। तो यहाँ से आपको रिव्यूज़ भी मिल जाता है, यहाँ से आपको जो ये वाला पोर्शन है आपका, यहाँ से आपको इंट्रो भी मिल गया, और साथ में आपको क्या मिल गया, आप यहाँ से बाय गाइडलाइन भी आपको मिल जाता है, और साथ में आपको इंट्रो भी मिल जाता है। तो आपका ये दोनों पोर्शन क्या कर देता है, आपका प्रोडक्ट कवर कर लेता है। इसी तरह से आप जब भी लिखते हो या फिर आप जो है उसको इस तरह से आपने करना है कि आपने क्या किया, आपने इसी तरह से जो है उसको
इसके बारे में सारा डेटा कलेक्ट करना है और इसी तरह से आपने उसके बारे में एक आर्टिकल को लिखना है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बेसिकली एक पूरा एक गूगल मेथड था और हमारे पास एज वेल एज हमारे पास ये जो था, इसको दोबारा से थोड़ा सा पेज कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक प्रॉपर मेथड था कि आपने गूगल पे इसको कैसे सर्च करना है और अमेज़ोन पे। इवन हमारे पास अमेज़ोन नहीं था तो इस वजह से हमने क्या किया, दराज मेथड को यूज़ किया। दराज और अमेज़ोन का ये सेम मेथड है। आपने इसी तरह से अगर किसी वेबसाइट डिजिटल मार्केट कोई भी होता है, वो दराज हो, अमेज़ोन हो या अलीबाबा स्टोर हो या कोई भी ऑनलाइन स्टोर हो, आपने वहीं पे जाके ऐसा ही सर्च करना है उस प्रोडक्ट को और उसके बारे में ऐसा ही रिव्यूज़ और सब कुछ आपने लिखना है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक प्रॉपर एफिलिएटेड आर्टिकल आ गया है। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे। कॉपी राइटिंग हमारे पास जो है वो आपका एक की माना जाता है। वो जो राइटिंग वो कंटेंट है वो एक की है ताकि आपका प्रोडक्ट क्या हो, वो सेल आउट हो जाए। फिर हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो डिजिटल मार्केट है हम उसके एफिलिएट लिंक हमें मिले। अगर एफिलिएट लिंक हमारे पास है तो हम अपने प्रोडक्ट्स को अपने लिए कमीशंस को अर्न करने के लिए हम कंटेंट राइटिंग करते, कॉपी राइटिंग करते, एफिलिएट आर्टिकल्स लिखते हैं ताकि वो हमारे पास क्या वो प्रोडक्ट आसानी से सेल आउट हो जाए, बजाय इसके कि हमें पोस्ट्स लगाने पड़े डिफरेंट साइट्स पे, डिफरेंट सोशल मीडिया पे। हम सिर्फ एक ही पोस्ट लगा के सारा इन्फॉर्म उसमें डाल दें। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था वो कॉपी राइटिंग पे था। एंड कॉपी राइटिंग में कहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारे एफिलिएटेड बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केट्स ओपन हो चुके हैं, बहुत सारे ऑनलाइन शॉप्स ओपन हो गए हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास यही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो ये भी एक दूसरा बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे आसानी से बहुत अच्छी सी अर्निंग कर सकते हो। आप उनकी एफिलिएट लिंक लेकर अर्निंग कर सकते हो, बल्कि कमीशन उनकी प्रोडक्ट सेल करके कमीशंस भी ले सकते हो और साथ में आप उनके लिए कंटेंट लिख कर भी बहुत अच्छा क्या कर सकते हो, उनको कमा सकते हो। तो ये पूरा लेक्चर था। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं।